Good morning, students. Today we will start chapter 1 of history, that is when, where, and how. In your previous classes, you have learned about the history. Indian history is divided into three periods, that is the ancient history, the medieval history, and the modern history. In class 6, you have learned about the ancient history and ancient civilization. In 7th class, you have learned about the medieval period and political, economic, and social changes of the people. And now, in this class, you will learn about history of modern India. That is considered, that is assumed that it was started in the late 18th century, and it brought the ideas of industrialization, urbanization, colonization, scientific progress, rationalism, and humanism. Now, its first heading is the frame under modern history, means from when the modern period is started, means according to this point it is said that in the different parts of the world, different framework of history. In Europe, the medieval history is said to have begun in the 6th century and ends in the 15th century AD. While in India, this period starts with the 8th century and ends with the 18th century. It shows that different countries or different parts of the world have their different time period. Means India started witnessing remarkable changes in its political, economic, social, and cultural life from the later part of the 18th century. The modern period extends roughly from the middle of the 18th century to contemporary times. Means it is considered that modern period of India was started in the middle of the 18th century and it's continuously prevailing now. Means this period covers about 250 years of Indian history or history of India. This framework focus on different changes or many changes or study. It focus on the study of changes in the world. In the 19th century, many British historians like James Mill, who wrote a history of British India in 1817, were very critical of Indian nature. Means according to James Mill, who was a Scottish economist and political philosopher, divided the history of India into these three parts. Which three parts? That are Hindu period, Muslim period, and British period. His division was based on the religion of the rulers. में उस टाइम में जो रिलीजन के रूलर्स थे, जेम्स मिल ने उस टाइम को उसके अकॉर्डिंग, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया. James Mill advocated that all ancient societies were lower level of civilization than Europe. मीन्स जेम्स मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ है, एशियन कल्चर है, एशियन इंडस्ट्रीज हैं, वो सब कैसे लोअर लेवल की हैं? लोअर लेवल सिविलाइजेशंस देन यूरोप. मीन्स यूरोपियंस आर मोर सिविलाइज देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. He said that he said that during the reign of the Hindu and Muslim rulers, the social life in India was dominating by caste, religious intolerance and superstitious practice. मीन्स वो उसका क्या मानना था कि जो लोग हैं इंडिया के, वो सिर्फ कास्ट को फॉलो करते हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस में अपने रिलीजन को ही सुपीरियर मानते हैं और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस और अंधविश्वास में बिलीव करते हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, दे हैव द अथॉरिटी टू सिविलाइज द होल ऑफ इंडियंस. में सभी इंडियंस को, सभी एशियन सोसाइटीज़ को सिविलाइज करने का वह अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास. मीन्स उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है वो मोर सिविलाइज्ड है एज कम्पेयर टू इंडियंस.
बट जेम्स डिवीज़न वॉज फुल ऑफ ड्रॉबैक्स। मगर जो उसने डिवीज़न दिया हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड का, वो फुल ऑफ ड्रॉबैक्स था, वो कमियों से भरा हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड था? सिर्फ रिलीजन ऑफ रूलर्स के ऊपर बेस्ड था। जबकि उसने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट्स जितने भी डेवलपमेंट्स हुई थी सोसाइटी में या इकोनॉमी या कल्चर में जो भी डेवलपमेंट्स थी, उसके ऊपर कोई अपना फोकस नहीं किया, सिर्फ उसने रिलीजन के बेस पे इंडिया के पीरियड्स को डिवाइड कर दिया। सो to get a clear picture of the important changes in history, historians divided the past into three periods. These are ancient period, the medieval period, and the modern period. In this class, you will learn about the history of modern period, that is from 1715 AD to AD means Anno Domini to India after independence. Modernity reflects material progress and intellectual achievements. मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मॉडर्निटी जो आधुनिकता है वो क्या शो करती है? मटेरियल प्रोग्रेस की हम लोग टेक्निकली और इंटेलेक्चुअली कितने एडवांस हो चुके हैं. It is associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, equality, democracy, and liberty. Means modernity shows or modernity associated with science, reason, it brought concept of equality, democracy, and liberty. Now, colonization. Colonization refers to the process in which a powerful country controls other politically and economically countries. Means colonization में क्या होता है? जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्रीज को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्रोल कर लेती हैं, that process is called colonization. Or we can say that like British made India his colony, means Britishers controlled our political and economical progresses. In other words, we can say when the subjugation of one country by another, means when the control of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes in the former, we call the process as colonization. The British and their missionaries initially came to India for trade and commerce. ये सबको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो कि ब्रिटिशर्स इंडिया में किस लिए आए थे? फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, सिर्फ बिजनेस करने के लिए, एंड फॉर द स्प्रेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए. उनकी कोई एज सच कोई पॉलिटिकल एम्बिशन, कोई गोल नहीं था. बट व्हेन दे interacted with Indian people, and so they taken its advantage that India is a rich country and political unstable. means जो इंडिया के जो लीडर्स थे, जो रूलर्स थे, जो चाहे छोटे छोटे रूलर्स थे, पावरफुल रूलर स्मॉल रूलर को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते. तो इसी चीज़ का एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने उठाया, क्योंकि उनको पता लग गया कि इंडिया पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबल नहीं है. तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे दे स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन ऑल द मेजर इकोनॉमिकली फ्लोरिशिंग सेंटर्स. तो उन्होंने अपना होल्ड करना स्टार्ट कर दिया. कौन से सेंटर्स पे? जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, लाइक बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, एक्सेट्रा. And after the battles of Plassey in 1757 and Battle of Buxar in 1764, the Indian economy was transformed from a surplus and self-sufficient economy to a colonial economy. But क्या कहते हैं, इन बैटल्स के बाद ब्रिटिशर्स इतना स्ट्रॉन्ग अपना कंट्रोल कर चुके थे इंडिया की इकोनॉमी में कि जहाँ इंडिया पहले एक सरप्लस, जहाँ पे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ग्रेन्स होते थे, ज्वेलरीज होती थी, एक्सपोर्ट कर सकते थे, अब वो क्या बन के रह गए थे? सिर्फ एक कॉलोनियल इकोनॉमी. में दे वर द पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स हैंड. देयरफॉर इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी इन द 18th century. Now
Sources of modern history means how we come to know about the history. Clues and evidences on the basis of which we write history are known as the sources of history. Means वो clues, वो evidence जिनसे हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, that are called sources of history. As India was divided in three periods, so modern period also divided into the following categories. क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे, तो उनका एक मेन फीचर क्या था, दे डू डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स वो जो कुछ भी रिकॉर्ड करते थे, किसी भी रूलर से मिलते थे, जो भी चेंजेस देखते थे, दे स्टार्टेड राइटिंग. First was official records. The official records of the British administration are an important source for the study of modern periods. में उस टाइम के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, उससे हमें इंडिया के कंडीशन का पता लगता है. The British laid great emphasis on documenting. मीन्स वो जो कुछ भी रिकॉर्ड करते थे, नोटिस करते थे, जो भी चेंजेस देखते थे, दे डॉक्यूमेंटेटिंग में उसको रिटर्न में जरूर करते थे. They got every instruction, plan, policies, treaty, agreement, decisions and investigation etc. penned down. मीन्स जो कुछ भी उनको इंस्ट्रक्शंस, चेंजेस, ट्रीटी, जितनी भी संधि होती थी, कोई एग्रीमेंट्स होते थे, कोई डिसीजन लिया जाता था, उसको लिखते थे. पेन डाउन मीन्स लिख लिया जाता था वो सब कुछ. It became easier to study, ponder and discuss matters this way. मीन्स अगर लिखा हुआ होगा हमारे पास मैटर, तो वो इजी रहेगा स्टडी करने के लिए भी. पॉन्डर मीन्स थिंक डीपली थोरोली, उसको डिस्कस करने के लिए, सोचने के लिए. एंड डिस्कस द मैटर. तो उससे क्या हुआ कि रिजल्ट क्या निकला कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा, डॉक्यूमेंटेशन हुई, उसके बाद जितने भी गवर्नर्स आए, जनरल्स आए, तो उनको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पहले पता था, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे. The British also focused on the preservation of all these written records and documents. अब ब्रिटिशर्स ने किस पे और फोकस किया कि सिर्फ लिखे ही नहीं, बल्कि उनको प्रिजर्व भी किया, जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स थे. Therefore, they set up record rooms in every department of their administration. तो उसने अपने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में क्या किया, रिकॉर्ड रूम मेंटेन करने स्टार्ट कर दिया. टू प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स. उन्होंने क्या किया स्टार्ट, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए. नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे हैं, कोलकाता की, जो एस्टेब्लिश हुई, कब एस्टेब्लिश हुई, 1891 में. दैट इज़ द बिगेस्ट आर्चीव ऑफ इंडिया. और उसका नेम क्या है, इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की थी ताकि वो उन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सकें और उन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकें. एक और बड़ी आर्चीव जो है न्यू दिल्ली में है, दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1972. बट इंडिया की जो बिगेस्ट आर्चीव है वो है इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, दैट इज इन कोलकाता एंड एस्टेब्लिश इन 1891. Now next is surveys. James Priest, who was the governor of British India, introduced land surveys. क्या स्टार्ट किया उन्होंने, लैंड सर्वेज को इंट्रोड्यूस किया. सर्वेज किसके लिए, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ताकि जब तक उनको सर्वेज करके पता नहीं लगेगा कि कौन से एरियाज में वो डोमिनेट कर सकते हैं, कौन से एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए जेम्स प्रिस्ट ने सजेस्ट किया लैंड सर्वेज. सर्वेज डिफरेंट टाइप्स के थे, उसकी कैटेगरीज, रेवेन्यू सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज, archaeological surveys, forest surveys, etc. that were carried out under the British period. For example, रेवेन्यू सर्वेज. रेवेन्यू सर्वेज क्यों कंडक्ट किया गया, विलेजेस में, ताकि वहाँ की टोपोग्राफी जान सके, किस टाइप की सॉइल है, मीन्स कितनी क्वालिटी वाइज फर्टाइल है या नहीं. क्योंकि जब तक उनको फर्टिलिटी का पता नहीं लगेगा, सॉइल का पता नहीं लगेगा, तो वो कैसे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे. फ्लोरा एंड फोना, रिसोर्सेज क्या थे, लोकल हिस्ट्रीज क्या थी,
क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या थे, ये सब किस में आते हैं, रेवेन्यू सर्वेज में। From the end of the 19th century, they introduced census operation that were held every 10 years. Census means जनगणना। क्या होता है census? The census gave a detailed account of the total number of people living in all the provinces of India, including their religions, caste, occupations and इकोनॉमिक कंडीशंस, ताकि पता लग सके कि किस रिलीजन के, किस कास्ट के लोग रहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन वो प्रिवेल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। They do not tells us about the activities and feelings of general people, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किस लिए किए, फॉर देयर ओन सेल्फिश, क्योंकि उनको सिर्फ एक्टिविटीज़ जाननी थी, फर्टिलिटी जाननी थी, सॉइल की क्वालिटी जाननी थी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जाननी थी। इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू डिपेंड ऑन द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। अगर हम इंडिया के लोगों की फीलिंग्स की बात करें, उनकी और एक्टिविटीज़ की बात करें, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज दैट। बट क्या कहते हैं, उसके बाद लोगों ने जैसे जैसे लिखना शुरू किया, लिखना में सिर्फ लिखना क्या, एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, एंगर एक्सप्रेस करना, जॉय सोरो एक्सप्रेस करना मॉडर्न पीरियड में बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इवन मैनी वीमेन ऑल्सो बिगेन टू राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मीन्स पहले लोग लिखते नहीं थे, मीन्स अकाउंट्स जो रिटर्न मैटर होता है जिसमें वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो मॉडर्न पीरियड में लोगों ने स्टार्ट करना है। इंडियंस ने भी स्टार्ट किया लिखना। राशुंतरी देवदासी और राशुंतरी देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू राइट an autobiography in Bengali in 1876 named Amar Jeevan. She was the first lady who wrote an autobiography in Bengali language in 1876. That the name of her account was Amar Jeevan. Other sources were also there who gave the ideas of Indian people and modern period, or we can say people's activity, people's culture, their festivals, their religions, etc. These sources are personal diaries, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत लोग अपने डायरीज लिखते हैं, यानी कि अपने जो डेली के एक्सपीरियंस, अगर उनकी लाइफ में कुछ हर दिन जो भी कुछ डिफरेंट होता है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स भी जो तीर्थ यात्री दूसरे देशों से आते थे उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया। ट्रेवलर्स घूमने जो आते थे। ऑटोबायोग्राफीज मीन्स आत्मकथा, किसकी आत्मकथा, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की। पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर्स, stories, poems and novels, books or newspapers covering ideas and feelings of political leaders and social reformers, means newspapers ने भी ideas जो है पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। किसके आइडियाज़, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स के। जर्नल्स भी एक तरह से मैगजीन्स होती हैं, वो स्टार्ट किए लोगों ने लिखने। रिव्यूज़, एडिटोरियल्स, articles in newspapers and magazine. So these are the other sources which gave us detail of Indian history and its peoples and its feelings. The above mentioned literary sources serve as major sources of modern history. With the invention of the printing press, newspapers and booklets were published in large numbers. जब तक न्यूज़पेपर्स नहीं थे तब तक बहुत ही कम, हैंड रिटन कॉपीज़ बहुत कम होती थी, तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती थी पढ़ने के लिए। बट जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई, न्यूज़पेपर्स और बुकलेट ज़्यादा लार्ज नंबर में पहुंचने लगे, पब्लिश होने लगे और ज़्यादा लोगों तक पहुंच के लोगों को अवेयरनेस हुई, लोगों तक पहुँचे, लोगों की आवाज़ बनी, यानी कि जो पेन है, जो पेन की पावर है, जो रिटन मटेरियल की पावर है, वो लोगों तक पहुंचने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स पढ़ने लगे, लोगों के व्यूज़ जानने लगे और अपनी कंडीशन के बारे में भी अवेयर हुए। सो नाउ टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।